So sit in a comfortable posture, friends. Make yourself comfortable. Just relax, my dear friends. In this beautiful morning, we're all here to practice meditation. There is no hurry now. There is nothing to do now. Just relaxing. Observe your natural breathing. Your incoming and outgoing breath. The natural breathing. Your normal breathing.
Meditation means observing your breath. Meditation means self healing. Meditation means traveling to within. Just observe your natural breathing. As you breathe in, you are receiving fresh and positive energies. As you breathe out, you are releasing all stale and negative energies. If your mind is wandering here and there, bring back to the present moment. The present moment is here with your breath. With your natural breathing.
Be with your breath, my dear friends. Don't go behind your thoughts. Your thoughts are like passing clouds in the sky. Just ignore your thoughts. And observe your natural breath. Your breath is your master. Your breath is your God. Just stay with your breath for a few minutes.
last 1 minute. Seconds. Seconds. Three, two, one, zero. Keep your both hands, fingers on your eyes. And gently open your eyes. Okay, friends. I know this is very short meditation for you now. We have done 25 minutes meditation. So your capacity is increased to 40 minutes now, like we did yesterday. Yes. Okay, friends. So now, I would like to invite Irumji. She is a psychotherapist. She also practicing meditation and teaching many people in her place. So today she is with us to share her journey, how meditation transformed her and how she teaching to others and the benefits of meditation. So let us all invite her to share her journey with us, friends. Yes. Yes. Yeah. Thank you, Irimji. Thanks for coming here today. I can't hear you. Please unmute. Just a minute. Yes. Yes.
Thank you, Master Manoj. You can hear me now? Yes, yeah. Okay. So thank you very much for having me here. It's pleasure to be on this group and to be able to share my experience. Yes. So you can share in your language. So all Okay, are, yes. okay. Thank you. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. So I am Please unmute. Please unmute. unmute. Yes. Okay. So I'm really happy to be here. मुझे बहुत खुशी है आज यहाँ पे आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैं अभी रिसेंट टाइम से लास्ट ईयर से शुरू करती हूँ. जब ये कोविड का ज़माना शुरू हुआ तो उस वक्त जाहिर है बहुत एक तरह से मुश्किल हो गई, एक फियर बहुत हो गया और अनरेस्ट बहुत हो गया, कंफ्यूजन बहुत हो गया. कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक से एकदम क्या हो गया. हमारी लाइफ बहुत चेंज हो गई और सब कुछ बहुत बदल गया. आइसोलेशन हो गई, हम सबसे कट के रह गए. जो फैमिली मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे भी हम कट के रह गए. वो हमसे अलग हो गए. एक तरह से उनसे मिलने का मौका नहीं मिल रहा था, जा नहीं पा रहे थे. तो ऐसे वक्त में मैंने महसूस किया कि मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है. बहुत ज़्यादा मैंने महसूस किया कि अपनी फैमिली का, उनके लिए कंसर्न बहुत ज़्यादा मेरा बढ़ गया. और जो हालात थे, जो जैसे चल रहे थे, उसकी वजह से मैं खुद भी बहुत कहना चाहिए कंफ्यूज भी थी और ऐसी एक अनश्योरिटी सी थी. सो उस ज़माने में हुआ ये कि मैंने मेडिटेशन शुरू किया. मैं ये मास्टर मनोज से मिलने से पहले की बात है, क्योंकि मैं मेडिटेशन के बारे में जानती थी और मेरा एक स्पिरिचुअल ग्रुप है, एक रूहानी ग्रुप है यहाँ कराची में. मैं कराची में रहती हूँ, तो उनसे बहुत पहले से मेरा उनसे ताल्लुक है. तो उन्होंने मुझे मेडिटेशन सिखाई, उन्होंने मुझे बहुत कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया. तो मैं ये जानती थी, लेकिन मेरा बीच में कुछ वजूहात की वजह से ये सिलसिला मुनक़ते हो गया. मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रही थी. तो हुआ ये कि कोविड में जब ये सब हालात हुए तो अचानक मुझे ख़्याल आया कि मैं अपनी मेडिटेशन दोबारा शुरू करूँ, क्योंकि इतना टाइम था मेरे पास. तो मैंने अपनी मेडिटेशन दोबारा शुरू की और कुछ ही दिनों में मुझे अपने अंदर बहुत फ़र्क महसूस होने लगा. जो मेरा कन्फ्यूज़न था, ख़ास तौर पे जो खौफ़ था, और कभी-कभार ये भी होता है कि हमारा अपना खौफ़ नहीं है, वो खौफ़ दूसरों का होता है, जो हम महसूस कर रहे होते हैं, आस-पास के लोग हमारे सामने बात करते हैं, तो हम भी उनकी फीलिंग्स को पिक कर लेते हैं. अ, तो हो भी मेरे साथ भी ये हो रहा था. तो मैंने महसूस किया कि मेडिटेशन करने से बहुत हद तक मेरा जो खौफ है वो कम होने लगा, मेरी अनश्योरिटी जो है वो कम होने लगी. मैं अपने अंदर एक स्ट्रेंथ महसूस करने लगी, एक ताकत मुझे महसूस होने लगी, क्योंकि मेडिटेशन मैं पहले करती भी थी तो काफ़ी जो एक्सपीरियंस था वो मेरी समझ में आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है. एक चेंज आने लगा. मैं अपने आप को भी सँभाल पा रही थी और जो मेरे घर वाले हैं, मेरी फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी मैं सँभाल पा रही थी. और ये बहुत चैलेंजिंग था उस वक़्त. मुझे सबसे ज़्यादा जो मुश्किल और चैलेंजिंग जो लगा उस वक़्त वो ये था कि मैं अपने आप को सँभाल पाऊँ, ताकि मैं बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ डॉटर, मैं सबको सँभाल पाऊँ. उनको भी हिम्मत दे सकूँ कि ये जो वक़्त है ये गुज़र जाएगा और हम सब जो हैं इसमें से निकल आएँगे किसी तरह. तो ये एक बहुत पॉज़िटिव फीलिंग मुझे मेडिटेशन से हुई. और हुआ ये कि कुछ महीने बाद मेरी एक फ्रेंड है, उसको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है. तो उससे मेरी बात हो रही थी और ये बात मेरी उससे व्हाट्सएप
थैंक यू, थैंक यू। तो मेरी उससे व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, तो उसने कहा कि मुझे वो हाई ब्लड प्रेशर का इशू हो रहा है, तो मैंने कहा कि प्लीज तुम फौरन मेडिटेशन शुरू करो। तो उसने कहा मेडिटेशन क्या होता है, उसे कुछ भी नहीं पता था मेडिटेशन के बारे में। तो मैंने उसको थोड़ा बहुत बताया और व्हाट्सएप पे ही मैंने उसको रोजाना मेडिटेशन कराना शुरू किया। और कुछ दिनों में उसकी हालत बहुत बेहतर होने लग गई, वो बहुत बेहतर महसूस करने लगी। वो कहने लगी कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये एक ऐसी चीज एग्जिस्ट भी करती है। सो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत इनकरेजमेंट इनफैक्ट मिला। इसके बाद मेरी बहन है जो बाहर रहती है, उसको बहुत सिवियर हेडेक्स होती हैं। मैंने उससे भी कहा कि तुम मेडिटेशन शुरू करो और उसने भी मेडिटेशन शुरू की, इसी तरह मैंने उसको फैसिलिटेट किया। तो मेरी एक इनकरेजमेंट होने लगी और मुझे इतनी खुशी महसूस होने लगी कि मैं ये अपनी फ्रेंड, अपनी बहन की मदद कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं अपनी मदद कर रही हूँ और इसकी वजह से मैं सबकी मदद कर पा रही हूँ। तो मेरी बहन की तबीयत बहुत बेहतर होने लगी। अब मैं आपको बताती चलूँ कि ये दोनों जो हैं रेगुलरली मेडिटेशन करती रहीं और इसके बाद इनके हालात में इतने चेंजेस आने लगे। एक मेंटल ब्लॉक्स होते हैं हमारे, वो मेंटल ब्लॉक्स जो हैं वो दूर होने लगे इनके। खुद ब खुद जो कुछ ऐसे कहना चाहिए कि दरवाजे खुलने लगे, जो ये जो चाहती थी इनके साथ के हालात बदल जाएँ, वो हालात भी बदलने लग गए इनके। तो ये चीज़ जो है, ये फ़ायदा मेडिटेशन का हुआ। मास्टर मनोज के साथ उसके बाद इत्तेफ़ाक ये हुआ और मैं ये समझती हूँ कि ये मेडिटेशन का ही एक करिश्मा था, एक मिरेकल था कि मेरी मास्टर मनोज से मेरी मुलाकात हुई अपनी एक फ्रेंड के थ्रू, जो इनसे मिली हुई थी, इनको जानती थी। और फिर पता चला कि हम एक ग्रुप जॉइन करने वाले हैं मेडिटेशन का 41 डेज़ का। और मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। मैंने कहा कि क्योंकि मुझे थोड़ा-सा इश्यू होता था कि मैं इतनी रेगुलर नहीं हो पाती थी और कभी-कभी मैं छुट्टी भी कर लेती थी। तो मुझे मेरे दिल में यही था कि किसी तरह बस मैं रेगुलर हो जाऊँ और ये हो गया। सो फिर ये 41 डेज़ का एक हमने मास्टर मनोज के साथ कोर्स किया। उसके बाद एक और 41 डेज़ का कोर्स किया और इतने फ़ायदे हुए, इतने मिरेकल्स हुए, इतने चेंजेस आए। अ, सोच में चेंजेस आए, हालात में चेंजेस आए। और फिर एक इंटेंसिव कोर्स भी हमने किया 41 डेज़ का, जो मास्टर मनोज के साथ हमने वो 2 घंटे का था मेडिटेशन का टाइम और वो हमने रात में किया और वो एक अलग एक्सपीरियंस था। सो मैं ये समझती हूँ कि मेडिटेशन के बेपनाह फ़ायदे हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। और मेरे जो मेंटल ब्लॉक्स थे ख़ास तौर पे, वो दूर हुए क्योंकि उसके बाद मैं ये बहुत सोचती थी कि मैं ट्रैवल करूँ और मुझे शौक था कि मैं अकेले ट्रैवल करूँ। और होता ये है कि कभी-कभार हम सोचते तो हैं, वो होता नहीं। लेकिन एक ऐसा मौका आया, मेरा साइकोथेरेपी से रिलेटेड एक कोर्स था नॉर्दर्न एरिया में और मुझे वहाँ अकेले जाना था और मुझे अकेले जाने की आदत नहीं थी, हमेशा फैमिली के साथ ही मैं जाती थी। तो मेरा मुझे पहले तो ज़रा-सा कुछ फ़ियर महसूस हुआ कि मैं जाऊँगी, ऐसे जाऊँगी, वैसे जाऊँगी, बाय एयर जाना है। तो तो लेकिन अचानक ऐसे जब ये सोच मुझे आई, उसके साथ ही मेरा सारा फ़ियर जो है वो उड़ गया। बिल्कुल उसी वक़्त जो है वो मेरा फ़ियर उड़ गया और इसके बाद वो पूरा कोर्स मैंने ट्रैवल अकेले किया, मैं गई, मेरे साथ और पार्टिसिपेंट्स थे। लेकिन ये कि मैं एक तरह से अकेली ही थी और नॉर्दर्न एरिया में जाके काफ़ी दूर मैं वहाँ रही 10 दिन के लिए और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था। और मैं समझती हूँ कि मेडिटेशन ने मेरे ज़हन को इतना खोला, मुझे बहुत एक फुलफिलमेंट, एक हैप्पीनेस की फीलिंग्स मैंने एक्सपीरियंस की वहाँ जाके। और कोई एंग्ज़ायटी, कोई बेचैनी जो कभी-कभार मुझे हो जाती है और वो तो साथ-साथ है, ज़िंदगी के साथ-साथ ही रहती है, लेकिन मेडिटेशन करने से वो मेरी दूर हो जाती है। और मैं आप सबसे कहूँगी कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें।
और मेडिटेशन के फायदे आप पे खुद जाहिर होंगे। मेडिटेशन से मेरी जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें बहुत बेहतरी आई है। आपस के जो ताल्लुकात हैं उसमें मुझे समझ एक तरह से आ जाती है कि दूसरा इंसान क्या चाह रहा है मुझसे, और मैंने कैसे रिएक्ट करना है, मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि पेशेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर लाइफ में हर जगह हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम इम्पेशेंट होके बेचैन होके कोई फैसला करते हैं, कभी कभार वो फैसले सही नहीं होते। तो पेशेंस बहुत मुझ में आया। उसके अलावा क्लैरिटी बहुत मुझे आई है। अ, मेरा जो कॉन्शियस सेल्फ है, यानी मेरा जो शऊर है वो बहुत बेदार हुआ है। मेरी इंस्टिंक्ट कहना चाहिए या इंट्यूशन बहुत बेहतर हो गई है। ज़ाहिर है ये चीज़ों की ज़रूरत हमें अपनी लाइफ में होती है ताकि हम बेहतर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और इसके अलावा मेरी जो फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्रेशंस हैं, जो कॉस्मिक एनर्जी हम जिसे कहते हैं, जो हमारे हम जिस एक तरह से वो हमारे वजूद में है, हम उस इट इज़ पार्ट ऑफ अस। सो उस एनर्जी की वजह से मैं ये कहूँगी कि मेरे जो सिक्स सेंसेस हैं वो भी बहुत बेदार हुए हैं और बेहतर हुए हैं। सो इस तरह के बहुत सारे जो है चेंजेस आए हैं, और यस इट टेक्स टाइम। मैं ये नहीं कहूँगी कि फौरन जो है ये चेंजेस आने लग गए, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि मैं बहुत पहले से मेडिटेशन में थी, और एक स्पिरिचुअल जर्नी मेरा बहुत पहले से शुरू हुआ था व्हेन आई वाज वेरी यंग। तो लेकिन ये कि वो सिलसिला कभी होता था फिर टूट जाता था। सो आई हैड सम नॉलेज, मुझे नॉलेज थी इस बारे में। लेकिन इस दफा ये चेंजेस, क्योंकि मैं बहुत रेगुलर थी, और चेंज लाने के लिए आपको परसिस्टेंट होना है। आपने रोजाना अपनी प्रैक्टिस करनी है और टाइम को बढ़ाते जाइए। जैसे मास्टर मनोज आपको बता रहे होते हैं, आप परसिस्टेंट रहिए, आप इस चीज में लग जाइए। और बहुत सारे ब्लॉक्स आएंगे, आपको महसूस होगा, और मुझे भी होते हैं ब्लॉक्स महसूस, और मास्टर मनोज मुझे कन्विंस करते रहते हैं कि ये आपका ब्लॉक है। और तो ब्लॉग्स आपके आएँगे, आप ज़रूर शेयर कीजिए ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप की एनर्जी जो है वो बहुत ज़बरदस्त होती है, और एक सहारा मिलता है एक-दूसरे से। और उस वजह से फिर आपके जो ब्लॉक्स हैं, आपकी जो रुकावटें हैं, वो खुद ब खुद दूर होने लगेंगी। और जो मैंने आपसे कहा कि जो कॉस्मिक एनर्जी है, इसकी वजह से मैंने महसूस किया कि ये एनर्जी जब मेरे अंदर बढ़ने लगी, बहुत सारे काम जो मैं सोचती थी कि हो जाएँ, मैं कर लूँ, वो खुद ब खुद होने लग गए, और मुझे उसमें कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी और ना करनी पड़ती है। तो सारी बात ये है कि बस आपने अपने ज़हन को इस चीज़ पे फ़ोकस रखना है। तो इंशाल्लाह आपके तमाम काम जो हैं वो हो जाएँगे, आपकी रुकावटें दूर हो जाएँगी। आप और मुझे डिप्रेशन का बहुत इश्यू था, काफ़ी अरसे तक मुझे डिप्रेशन का इश्यू रहा। और अब अ, मैं ये कहूँगी कि बहुत बहुत बेहतर हो गया है। आई वुड से लाइक अराउंड 95% वो खत्म हो गया है। आई कैन ओनली आई कैन नॉट सी इट स्पिरिचुअलिटी, आई कैन फील इट। मैं महसूस कर सकती हूँ। स्पिरिचुअलिटी जो है वो हम महसूस करते हैं। इसकी जो फीलिंग है वो हमारे अंदर है। ये सब मैसेज हमारे अंदर ही आते हैं, एहसास के ज़रिए आते हैं, ख़्याल के ज़रिए आते हैं। और आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे आहिस्ता-आहिस्ता जब आप इस जर्नी पे निकल पड़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। आपका सब्र का बहुत-बहुत शुक्रिया। बैक टू यू मास्टर मनोज। यस, आपका स्टूडेंट का ये है ना स्लीपिंग का एक्सपीरियंस बताइए। यस, आई एम गोइंग टू द जेल, सेंट्रल जेल में जा रही हूँ, और वहाँ पे मैं
टीच कर रही हूँ मेडिटेशन। मुझे तकरीबन 2 महीने तो हो गए हैं, और वहाँ पे जो एक बंदा है, जो एक कैदी है, उसकी उम्र मेरे ख़्याल में 60 से ज़्यादा होगी। वो बहुत खामोश रहता है और कुछ बुढ़-बाड़ सा है, जैसे कि मतलब जैसे कि ना सीरियस है बहुत, और अपनी सोच में जैसे गुम रहता है। मेरा ध्यान जो है ना पहली दफ़ा से ही उसकी तरफ बहुत रहा, मगर मैंने उससे कभी कोई सवाल नहीं पूछा। तो मैंने एक दिन जब एक दिन मैंने जब एक अपना मेडिटेशन करवाया, तो उसके बाद जब मैं सबसे एक्सपीरियंस पूछ रही थी शेयर करने के लिए कि आप शेयर कीजिए, तो मैंने उसकी तरफ देखा और मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद ये कुछ कहना चाह रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, शुरू में उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ना नींद का बहुत इश्यू हो रहा है, तो मैंने उनसे कहा कि इंशाल्लाह आपकी नींद ठीक हो जाएगी, आप बेहतरी आ जाएगी, आप प्रैक्टिस कीजिए। तो उन्होंने प्रैक्टिस की, और इसकी मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो हर बार मुझे कहते थे कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं रोज़ाना ये मेडिटेशन करता हूँ रात को सोने से पहले। तो उन्होंने मुझे फिर उस दिन उन्होंने मुझसे शेयर किया कि मैं जब बैठा हुआ था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं आँखें बंद करके मेडिटेट कर रहा था, तो मुझे ख़्यालात आने लगे कि मैंने किस-किस को दुःख दिया है, तकलीफ़ दी है, किस तरह मैंने उनको हर्ट किया है। और वो कहने लगे कि जब मुझे ये ख़्याल आया और मैंने देखा अपने आप को, इमेजिन किया, ज़ाहिर है वो पास्ट में अपने गए होंगे और उनको समझ आ गई होगी कि उन्होंने किस तरह तकलीफ दिया, और जो भी उन्होंने किया, मैं नहीं जानती वो क्यों आए थे जेल में, उन्होंने क्या क्राइम कमिट किया था, लेकिन बहरहाल उन्होंने इतना ही मुझसे शेयर किया। तो उन्होंने कहा कि जब मुझे ये ख़्याल आया और जब मैंने ये सोचा और मैं अपने पास्ट में गया और मैंने ये देखा, उस लम्हे मुझे समझ में आ गया कि मैंने क्या किया था। और फिर उसके बाद अचानक से मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। तो मुझे उनका ये एक्सपीरियंस सुन के बहुत मेरे दिल को बहुत लगा। आई वाज़ वेरी टच्ड, और मुझे खुशी भी हुई कि मेरी वजह से किसी इंसान को अ, कुछ रिलीफ मिला है, अपनी लाइफ में थोड़ा सुकून मिला है, मेरी एफर्ट से, कोशिश से। और मैं अपने आप से उम्मीद करती हूँ कि मैं इसी तरह कोशिश करती रहूँगी। थैंक यू। एनीथिंग एल्स मास्टर मनोज? आपका हुंजा एक्सपीरियंस शेयर कर दिए। Okay. Yes, I went to Hunza, and it was a wonderful experience over there. Nature जो है is very abundant over there. पहाड़ है चारों तरफ, ऊंचे ऊंचे वादियां हैं वहां पे, हसीन खूबसूरत, बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं। तो वहां जाके तो ऐसे लग रहा था कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो हर जगह है, हर जगह फैली हुई है स्पिरिचुअलिटी। हर जगह जो है एक लाइट है, एक अल्लाह ताला की कुदरत है, उसके नज़ारे हैं। तो इन्होंने मुझ पे इतना ज़्यादा अंदर से हिला दिया, इतना सुकून दिया मुझे, और मेरा दिल चाहता था कि बस मैं यहीं पे ही रह जाऊँ, और शायद मेरी सोल जो है वहीं रह गई है, क्योंकि वापस आने के बाद से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल लॉस्ट हूँ। मैं घर के कामों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वहाँ का जो एक्सपीरियंस हुआ, वहाँ का जो एक मज़ा लग गया मुझे, तो अब दिल चाहता है कि वापस मैं वहाँ चली जाऊँ। वहाँ की अ, हवाएँ जो थी, उनकी आवाज़ें, और एक खामोशी, जो साइलेंस है, वो सबसे ज़्यादा मुझे उसने अफ़ेक्ट किया। ये खामोशी शहर में हमें नहीं मिलती। ये खामोशी हमें शहर में नहीं मिलती है, जितना भी चाहें। सो यस, इट वाज़ वेरी इनविगोरेटिंग।
it was a wonderful experience. Thank you. Thank you, ma'am. Thanks for your sharing. Thank you, Master Manoj. So, friends, meditation is not one day task or 1 week. It's a continuous journey. So, I remember she has been with me more than 9 months. Yes. Continue practice meditation, hours and days. So it's a journey. We have to purify our system, which we have collected from many lifetimes, this lifetime, all the dust. So it's a purification process. So as I mentioned, Idumji, you must be regular and serious. Okay, then you can achieve. Yes. So friends, any questions? You can raise your hands if you would like to ask Idumji. Yes. I don't have a page. Uh, Yes, please. yes. Yes. Ifat ji. अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं फैसलाबाद से इफ़त बात कर रही हूँ। जी। मैम लास्ट ईयर मैंने सर्वाइव किया है कैंसर से। वन ईयर बहुत पेन I में understand. और अब 1 वीक से मैं सर की क्लास ले रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफी फर्क है। मतलब मेरे अंदर से फियर नहीं खत्म हो रहा था ना कि दोबारा पता नहीं अब मैं सर्वाइव कर सकूं ना कर सकूं। तो वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो प्लीज गाइड मी, मुझे गाइड करें कि मैं आगे मतलब अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए क्या कर सकती हूँ। मैं आपसे यही कहूंगी कि आप मेडिटेशन कीजिए, रेगुलरली मेडिटेशन कीजिए। और इसके अलावा मैं आपसे ये कहूंगी कि आप ऐसी बुक्स भी पढ़िए जो कि आपको पसंद है, लाइक फैसिनेट करें। ऐसे टीवी शोज देखें, कॉमेडी शोज देखें। क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था, जैसी आपकी हालत है और जैसा आपकी तबीयत रही है, आपकी बीमारी रही है, तो एक साहिबा थी, उन्होंने वो सिर्फ कॉमेडी शोज देखती थी, हंसती रहती थी। आप खुश रहिए, जितना आप खुश रहेंगी, ये एक पॉजिटिव एनर्जी है, खुशी। पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाइए। आप ये सोचिए कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी, बल्कि आप ये कहिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप हैं, आप बिल्कुल हैं। सो डू नॉट वरी। मैम नेगेटिव जो आपके इर्द गिर्द नेगेटिव पीपल हैं, उनसे कैसे आप मतलब पॉजिटिव हो सकते हैं? मतलब वाइब्स आपको नेगेटिव दाएं बाएं से आपको आ रही होती हैं, आप ऐसे माहौल में कैसे खुश रह सकते हैं? काइंडली गाइड मी। जी, ये बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल, जब आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहे होते हैं, मैं उसमें ये कहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम मेडिटेशन में गुजारें। क्योंकि मेडिटेशन एक तो ये कि आपकी एनर्जी को रेज करेगी, दूसरी बात ये है कि ये लोग जो है खुद ब खुद आपसे थोड़ा से दूर भी हो जाएंगे, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपने इनके साथ डील कैसे करना है। क्योंकि कभी कभी जो नेगेटिव लोग होते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमने इनके साथ डील कैसे करना है। तो जब आपकी एनर्जी रेज होगी, खुद ब खुद इनकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, और ये आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी कई बार ऐसे लोगों को महसूस किया है जिनकी एनर्जी बहुत टॉक्सिक होती है। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आप में, जब आप में खुद पॉजिटिविटी बढ़ने लग जाएगी ना, तो इनकी नेगेटिविटी आपको अफेक्ट नहीं करेगी। सारी बात यह है दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको रेगुलर होना है, आपको स्ट्रगल करनी है, आपको मेहनत करनी है। ये आपको करना होगा, लेकिन इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और इन हालात से निकल आएंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। You're welcome. You're welcome.
Thank you. Thank you. I'm also very touched to meet you all. I'm very touched. जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ऐसो अपना बात से डेरा गाजी से जी, कहाँ से? डेरा गाजी खान से मैम। जी जी, ओके। मैं जी 8 साल की थी तब ना मुझे दौरे पड़ने से हो गए थे। जी तो अब मेरी एज 23 है, फिर भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टरों को पता ही नहीं चला कि क्या है। कुछ कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन रुक रही है, कुछ ऐसा भी तनाव है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। और आ, जो लोग मिलने आते हैं तो ऐसे हमदर्दी जाहिर करते, उधर से बंदा टूट जाए एक तरह से। मतलब बुरा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह चलो हमारे हाथ पैर तो सलामत हैं, अपने काम तो खुद कर सकते हैं। कुछ एपिलेप्सी के पेशेंट हैं जो अपने काम भी खुद कर सकते हैं, तो मीन्स एक साइड बिल्कुल पैरालाइसिस हो गई है। उनको मेडिसिन ऐसी दी जाती हैं कि वो बस सारा दिन सोए रहते हैं, माइंड रिलैक्स की। और मेरा ये हुआ ना तो मेरी पढ़ाई भी छूट गई। बीएस अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ती भी रही हूँ। बी इंग्लिश के 3rd ईयर में मुझे टाइफाइड होता रहा है, 3 बार टाइफाइड हुआ लगातार। तो फिर मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके बाद से बस तो डिप्रेशन तो से होता था क्योंकि मैं छोटी छोटी बातें महसूस करती हूँ, तो उस वजह से भी हुआ ना, ये सारे डिप्रेशन भी बढ़ जाता था। कभी गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा। मेरा दिल करता है कि वो चीज उठा के फेंक, तोड़ दूं हर चीज। तो फिर जो है ना मैंने पेंटिंग स्टार्ट की, जिससे कि कलरों में अपने आप को मदद करना स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी पॉजिटिव चेंज आई। मेडिटेशन का तो ये था कि मैं खुद मतलब जिक्र भी है एक तरह से अल्लाह का, तो कलमा पढ़ती रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मुझे बहुत अच्छी चीज़ें मिली। मैं घंटा 1 घंटा एक कमरे बंद रह के जिक्र ही करती थी। मेडिटेशन का तो हमें बहुत पहले से पता है कि हमारे दीन में भी है। आप जानती हैं कि हमारे बिल्कुल। बुजुर्ग जो थे वो मेडिटेशन करते रहते थे। और अब भी होता है। अब क्रीम में जो है वहाँ एक दिन महसूस है कि सब मिल के मेडिटेशन करते हैं। अच्छा। तो अभी मतलब डॉक्टर्स के पास जाए तो मेरी लड़ाई हो जाती है, गुस्सा आ जाता है कि सब कहते हैं आप वॉक करो, आपका चलना फिरना ज्यादा हो, लेकिन मैं चल नहीं सकती ज्यादा, मेरे घुटनों पे पेन होता है। तो पता नहीं अब मैं कहती हूँ कि क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। देखें, सबसे पहले तो यह है कि आपने नाउम्मीद नहीं होना है। आपने बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं होना है। आपने नेगेटिव नहीं सोचना है, आप पॉजिटिव सोचिए। जो सोच का जो पावर है ना, वो इतना ज्यादा है। जो पॉजिटिव सोच का पावर है वो बहुत ज्यादा है। नेगेटिव सोच का भी पावर है, जाहिर है। आप नेगेटिव सोचेंगे, ख्यालात तो आएंगे। आपने इन्हीं ख्यालात से लड़ना है, जो नेगेटिव ख्यालात आएंगे। आपने पॉजिटिव सोचना है। जैसे पहले जो बहन थी, मैंने उनसे भी यही कहा कि आपने पॉजिटिव सोच अपनानी है, क्योंकि इस सोच का जो पावर है। और आप ये सोचें कि अगर आप अल्लाह ताला की नूर की एनर्जी को महसूस करें कि वो आपकी बॉडी में जा रही है, आपके जिस्म में फैल रही है, तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और इसी तरह ये जो मेडिटेशन है, ये भी वही नूर है हमारे अंदर। ये कॉस्मिक एनर्जी जो है, ये वही नूर है। तो आप जितना ज्यादा आप ये मेडिटेशन करेंगी, ये नूर जो है, इसकी ताकत से, इसकी बरकत से, इसकी रहमत से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आपके मसले जो है वो बेहतर हो जाएंगे। आप चलने फिरने लगेंगे इंशाल्लाह। ज़हनी तौर पे भी आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ ये है, आपने कोशिश करनी है। देखिए, आपकी मदद कोई नहीं कर सकता और ना कोई करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिन ऐसे खुशकिस्मत होते हैं जिनको कोई मिल जाता है, वो हाथ पकड़े उन्होंने ले जाए। कभी कभी हमारे आसपास भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन वो हमारी मदद नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते हैं। उनकी नीयत होती है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आपने साबित कदम रहना है। आपने हिम्मत नहीं हारनी है।
आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है, अपने आप से प्यार करना है, अपने आप से मोहब्बत करनी है। आपने अपने आप को अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप ही अपना सबसे बड़ा सहारा है और आप ही अपने आप को सबसे ज्यादा समझ सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो डॉक्टर आपसे कहते हैं, आप वो भी कीजिए। आप कोशिश कीजिए, अगर आप चल नहीं सकती तो आप बैठ के कुछ एक्सरसाइजेस कर लीजिए। जैसे पिछले साल मेरा पाँव जो है फ्रैक्चर हो गया था, तो मुझे बहुत ये होता था कि मैं अब चल नहीं पाऊंगी और उसकी वजह से मुझे काफी मसले हुए। तो मैंने खुद ही यूट्यूब पे जाके एक्सरसाइजेज ऐसी निकाली कि मैं बैठ के या लेट के एक्सरसाइज कर सकूं। लेकिन मैंने बहुत से हालात ऐसे आए, मैंने हिम्मत नहीं हारी। और ये भी मेडिटेशन की बरकत है, ये भी एक मिरेकल है मेडिटेशन। आप लोग खुश नसीब हैं, देखो आपको मौका मिला है यहाँ पे आने का, और आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। तो इसे पकड़ लीजिए, थाम लीजिए, जैसे आपने अपने आप को थामा है, इस रास्ते को थामा है, अल्लाह के रास्ते को थामा है। आप पढ़ती हैं, इतना कलाम पढ़ती हैं, इसकी बरकत है ये आपके साथ। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला आपको छोड़ देगा, बिल्कुल भी नहीं। हिम्मत रखिए। Assalamu alaikum, ma'am. अस्सलाम वालेकुम। This is Amara Ali, and I'm from Hyderabad, and I'm psychotherapist too. ओके ओके। Ma'am, it's really wonderful to listen to you. You know what? Before you, a lady came in our session, and she also shared her experience. And when I listened to her, it was like, "Ki yaar, this happened maybe, na." So when you shared your experience, I am feeling like, no, this is not only something which can happen. This is a miracle. So things that keep continuously changing in your life are, really the barakat of meditation. I am really surprised. Things are really changing, and it is not like only I am doing meditation and I'm feeling that I can perform meditation for 40 minutes or 30 minutes. Many thoughts come and go, and I always suffer like thoughts are coming and coming and coming. But apart from this, due to meditation, maybe my life is, transforming in another way. So this is amazing, and your experience really motivated me. Really motivated me to continue meditation. Wow, ma'am, it is something I'm feeling like you can also feel in my voice how happy I am to listen to you. So wonderful. Like, I am practicing psychotherapy for 3.5 years, and I'm taking patients and I'm going through it. But meditation is something, another type of magic. It's another level of thing. So your experience has really motivated me to continue, and inshallah, I'll continue meditation. Thank you. So lovely to hear your experiences and what you have just shared. And I'm so glad that Master Manoj called me here, and I have trying to give you something. मैं खुद तो कुछ नहीं हूँ, ये सब मुझे भी अल्लाह ताला ने इस रास्ते पे डाला है, और मेरी दिल से यही ख्वाहिश होती है, दुआ होती है कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ. So I'm really happy for you. I'm really happy for Ma'am, keep your on. experience मतलब क्या किया है उसने, बहुत wonderful था. It's magical, seriously. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Stay blessed. Thank you. It was wonderful to talk to you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Wonderful to talk to everyone. Yes, friends. Thank you, friends. Thank you very much. Thank you, Irimzi, Thank you, Master being Manoj. here Thank you very and much. sharing your experiences. Thank you. Yes, well, friends, Irumji will be keep coming here, and she will be guiding you all into meditation as well, also. So she's going to be interact with you in few days, okay, or weekly once, whenever she is available. So, okay, friends, thank you very much.
I think one more person here would like to share something. Yes, Yes. Amna ji. Sure. Assalamu alaikum, ma'am. Assalamu alaikum, sir. Yeah, ma'am. जी, Alaikum. I am Amna Waqas from Islamabad. जी मैम, मैं एक्चुअली आई एम एन एक्स्ट्रा सेंसिटिव पर्सन. मैं खुद भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती. मैं बहुत सारी सिचुएशंस में रो पड़ती हूँ, बहुत ज्यादा. मतलब मैं बात शुरू करती हूँ और मुझे रोना आ जाता. तो कैन मेडिटेशन हेल्प मी फॉर दिस, या मैं और ज्यादा सेंसिटिव हो जाऊंगी? No, you will become better. Inshallah, you will become better. आप बेहतर होती जाएंगी. मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन. मैं मतलब बहुत सारे पेरेंट्स के साथ ये अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है मेरा. मैं बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो करती हूँ, और मेरी कोई ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है जिसमें मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है या कुछ. अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ इज गोइंग गुड फ्रॉम चाइल्डहुड. लेकिन पता नहीं क्यों मैं बाय बर्थ ही ऐसी हूँ कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ. मैं किसी की भी तकलीफ सुनती हूँ तो शायद वो इतना फील नहीं कर रहा होता जितना मुझ पे हो जाता है उसका असर, कि कई दिन तक मैं परेशान रहती हूँ. मेरा कोई बहुत करीबी अगर कोई तकलीफ देखता है तो मैं बहुत अरसे तक उसको फील करती रहती हूँ. तो ये चीज में आई वांट टू बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो मेरा दिल करता है मैं कोई स्ट्रॉन्ग सी मतलब स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ जो मैं लोगों को हेल्प कर सकूं, बजाय ये कि मैं उनको सुन के खुद रोती रहूं. It's okay. It's okay to be sensitive. There's no problem. आप strong भी हैं, आप sensitive भी हैं. It's okay to be like that. And I would say कि जब आप sensitive feel करें तो just give yourself a hug. अपने आप को ऐसे ना जप्पी डाल लिया करें. And ask yourself, you know, क्या हुआ है? What's bothering you? Like आप कहें, मुझे क्या हो रहा है? What's bothering me? क्या चीज है जो मुझे affect की है? So be with yourself. Be compassionate with yourself. Be loving with yourself. And that is so important for all of us. सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को बहुत प्यार करें, बहुत प्यार दें. And it's okay to be sensitive. क्योंकि मैम ये समटाइम्स जैसे मैं टीचर हूँ तो कहीं पर मुझे कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है, कहीं पर मुझे अगर सामने आना पड़ता है तो मुझसे नहीं होता, और मैं डिफरेंट वो बनाकर बहाने तो पीछे हो जाती हूँ कि नहीं मैं नहीं कर सकूंगी कुछ, लेकिन फिर मुझे पता होता है कि मुझसे होगा नहीं. तो आई वुड से कि कुछ इस तरह के ब्लॉक्स हमारे अंदर होते हैं और वो कभी कभी हमें रोक देते हैं कि हम कोई काम नहीं कर सकते, किसी के सामने बोल नहीं सकते. मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम था. ये आप मत सोचिए कि मैं अभी इस वक्त बात कर रही हूँ तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत लग रहा होगा आपको, लेकिन मुझ में भी ऐसा मसला था. लेकिन बात यह है कि हमें जो भी ब्लॉक्स हैं या हमारे जो फियर्स हैं, हमें उनको देखना होता है, उन्हें एम्ब्रेस करना है, बहुत प्यार से आराम से समझना है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है. उन्हें रिजेक्ट नहीं करना है, अपने आप को रिजेक्ट नहीं करना है. तो आप जब मेडिटेशन करती रहेंगी तो आप फील करेंगी कि जो एनर्जी है वो आपकी रेज हो रही है. जब वो बढ़ती जाएगी आपके अंदर, वो पावर, वो स्ट्रेंथ खुद ब खुद आपके अंदर आएगी. आप ये चेंज देखिएगा, कुछ ही अरसे में आप में बेहतरी आने लगेगी इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच मैम. इंशाल्लाह. Yes. Thank you, friends. Thank you. Thank you, Irumji. It was a wonderful session and very, very, very interactive session. Thank you very much. Yes. Thank you, everyone. Thank you. Yes. See you, friends. See you tomorrow. Thank you. Thank you, sir. Allah Hafiz. Thank you, ma'am. Thank you. Allah Thank you. Good Hafiz.